I'm Ali Hassan, and I will be your host for today's session. And welcome, hello, assalamu alaikum to everyone. Welcome to another webinar of Apprise Systems. Today, the topic of our webinar is threat detection and response strategies for Blue Team in Cloud. We will be discussing about the best practices and strategies for detecting security threats in cloud environments. So for this, we have a very special guest today with us, Junaid Mumtaz, who have more than 4 years of experience in SOC. He have done several international and national projects regarding this. He is certified ethical hacker and have done 4 other Microsoft certifications, for which he will later introduce himself. So without further ado, I would like to call Junaid Mumtaz to please take the stage and begin his presentation. This is Junaid Mumtaz for you. I have been working in Security Operations Center since last 4 years, and I have done multiple projects related to SOC, done working with multiple national and international clients, work with different security controls, implementation of different security controls. So today we are going to discuss about the things that is related to cloud. So I hope you guys will definitely going to enjoy today's presentation. And in last, we will have a QA session with you guys. And I hope you guys will have some queries to ask, and you will definitely going to ask those queries. So I will be the one who will be responding all those queries. So I hope you will definitely going to enjoy today's presentation. So today we will be looking towards the fundamental part of cloud, fundamental detections, how we can collect the logs in cloud, what is actually the Microsoft Sentinel capabilities, that is a cloud native SIEM and source solution. We will be looking after to each phase, from log collections to log response in cloud. So without any further delay, let's start today's presentation. Okay. So आज के अगर बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि डिजिटल स्टेट, डिजिटल एसेट्स ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हम इर्द गिर्द जो भी चीजों पे हम देख रहे हैं, हम अपने मोबाइल से लेकर हम व्हीकल पे मूव कर रहे हैं, हम शॉपिंग सेंटर्स पे जा रहे हैं, हम बिजनेस एवेन्यूज पे जा रहे हैं, हम बैंक्स पे जा रहे हैं, तो हम इर्द गिर्द हमारे डिजिटल एसेट्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि जैसे ही हमारे डिजिटल एसेट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इतने ही जो सोफिस्टिकेशन ऑफ अटैक्स हैं, जो थ्रेट वेक्टर्स हैं, जो अटैकिंग वेक्टर्स हैं, वो भी उसी तरह से जो नई टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो इसलिए आज के दौर पे अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए, इन अटैक से बचने के लिए हमारे पास जो स्ट्रेटेजीज हैं वो किस तरह से हम बना सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे ही डिजिटल एसेट्स ग्रो कर रहे हैं ऐसे ही थ्रेट वेक्टर्स भी ग्रो कर रहे हैं। सो इन थ्रेट वेक्टर्स को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इस स्टेट के अंदर, इस पे एक जो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, हम क्लाउड की बात कर रहे हैं कि क्लाउड क्या चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है। वैसे तो ट्रेडिशनल सॉक चैलेंजेस भी मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा, लेकिन क्लाउड से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए हम इन थ्रेट वेक्टर्स को कैसे कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। दिस विल बी द एजेंडा ऑफ टुडेज discussions also. Moving forward, let's discuss about the observations that we have so far in the like ट्रेडिशनल सोक। यू कैन से दैट हम सोक में जब काम कर रहे होते हैं तो कुछ ट्रेडिशनल चीजें, कुछ कॉमन चैलेंजेस जो हम सबको फेस, रिकॉर्डलेस इट इज क्लाउड और ट्रेडिशनल लेगेसी सोक, हम हमें कुछ चैलेंजेस जो देखने को मिल रहे होते हैं, हम उन पे डिस्कशन कर लेते हैं वन बाय वन, और उसके बाद हम कुछ सॉक के जो चैलेंजेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और इन सब को कंट्रोल करने के लिए हम क्लाउड की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैसे हेल्प ले सकते हैं, हम वो भी डिस्कशन ला रहे होंगे। सो एक चीज जो जैसे मैंने पहले कहा कि हम जिस तरह से हमारे डिजिटल एसेट्स एक्सपेंड हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इस तरह से सोफिस्टिकेशन ऑफ द अटैक जो है वो भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो टेक्टिक्स नई आ रही हैं, नई टेक्निक्स आ रही हैं, हर दिन कोई नई टेक्निक आ जाती है। सो अटैकर्स को, अटैक वेक्टर्स को कम करना, उसको मिटिगेट करना, ये हमारे पास एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो कि हम सॉक में देख रहे होते हैं। आए दिन जीरो डे वल्नरेबिलिटीज इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं। सो उस चीज को कैसे हम कम कर सकते हैं, ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो हम सॉक में देख रहे होते हैं। सेकेंड थिंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, हम
जितने भी मेजॉरिटी की तरफ क्यों ना चले जाएं, हम अटैक्स को मिटिगेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन हम 100% परफेक्शंस की तरफ नहीं जा सकते। कभी भी हम देख रहे होते हैं कि हम कोई एक नया अलर्ट बनाते हैं, उसको मैच्योर करते हैं, उसको इस फेज पे लाते हैं कि ये सही ट्रिगर हो, लेकिन स्टिल आए दिन जैसे ही सोफिस्टिकेशन ऑफ अटैकर आता है, थ्रेट वेक्टर आता है, वो टेक्निक अपनी चेंज कर लेता है, तो फिर वो जो अलर्ट है वो वहीं पे रह जाता है। तो हम चीजों को 100% परफेक्शंस की तरफ ले नहीं जा सकते, लेकिन हम थ्रेट वेक्टर्स को जो है वो कम कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग यूज केसेस, बाय इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रेटेजीज। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन जो कि हम डेली सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर पे देख रहे होते हैं। उसके बाद जब भी हम सॉक की बात करें तो वहां पे इंटीग्रेशंस होंगी, वहां पे सिम सॉल्यूशंस होते हैं, सोर्स सॉल्यूशंस होते हैं, फायरवॉल्स, एंटीवायरसेस, एक्सडीआर, सो डिफरेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं। तो इनकी इंटीग्रेशन जो होती है ये रिक्वायर होती है। तो इंटीग्रेशन रिक्वायर तो इंटीग्रेट तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो अपफ्रंट कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सो उस कॉस्ट को बियर करने के लिए हम हर तरह का, किसी एक नॉर्मल सॉक के अंदर अगर लो बजट है हमारा, तो हम हर तरह का सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये भी हमारी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन हो रही होती है सॉक के अंदर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन के, हम अगर सॉक के अंदर जब तक हम ह्यूमंस और ऑटोमेशन दोनों को कंबाइन करके एफर्ट नहीं करेंगे, जब तक हमारा जो सॉक है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, उसमें हम अगर बात करें प्ले बुक्स की, तो हम बहुत कम देख रहे होते हैं कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर चीजें ऑटोमेट चल रही होती हैं, प्ले बुक्स इंप्लीमेंटेड होती हैं। सो जब तक हमारे पास ह्यूमन और ऑटोमेशन की कंबाइन एफर्ट नहीं होगी, तो हम इन सिक्योरिटी चैलेंजेस को उस तरह से कम नहीं कर सकेंगे। ये जो कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि हम डेली सॉक के अंदर देख रहे होते हैं। कुछ ट्रेडिशनल सॉक चैलेंजेस हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आप सब लोगों ने जो भी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर से रिलेटेड हैं, उन्होंने ये सारी चैलेंजेस जो हैं वो फेस आउट किए होंगे। इनको हम किस तरह से वन बाय वन मिटिगेट कर सकते हैं, इसके लिए हम टुडे, ये एक बेसिकली बैकग्राउंड है आगे, क्योंकि हमने क्लाउड की बात करनी है। तो क्लाउड के बैकग्राउंड पे ये सारी चीजें सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर से रिलेटेड बताना मैं लाजमी समझता हूँ। इसको रिलेट करवाऊंगा आगे अपनी प्रेजेंटेशंस में। सो कुछ ट्रेडिशनल सोक चैलेंजेस है। फॉर एग्जांपल जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की, मैं उसमें अलर्ट्स की मेजोरिटी पे हमेशा क्वेश्चन होता है। हम देख रहे होते हैं हमारे एनालिस्ट कोई अलर्ट बना लेते हैं, लेकिन वो फॉल्स पॉजिटिव रेशियो उसका इतना ज्यादा होता है कि जब कोई रियल वाकई में थ्रेट अटैकिंग की जो एक्टिविटी होती है थ्रेट एक्टर्स की, तो वो उससे मिस आउट हो जाती है। सो इसके वॉल्यूम को हम, नॉइसी जो वॉल्यूम ऑफ अलर्ट्स है, ये हमारे पास एक चैलेंज है आजकल सॉक के अंदर। उसके बाद सेकेंडली, जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे पास इंटीग्रेशंस के लिए जो डिप्लॉयमेंट और अपफ्रंट कॉस्ट जो है सिक्योरिटी कंट्रोल्स की, वो भी हमारे पास एक चैलेंज आता है जब हम सॉक की मेजोरिटी की बात करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में लेट्स सी एक टीम है जिसपे 6 लोग काम कर रहे हैं। तो उन 6 लोगों में जो सिक्योरिटी से रिलेटेड स्किल्स हैं, हमारे पास सर्टिफिकेशन का भी फुकदान है, उस तरह से सर्टिफिकेशन लोग सर्टिफाइड नहीं होते, जो फील्ड से रिलेटेड नॉलेज की जो है वो हमें कमी मिलती है। सो हमारे पास क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर आज से 2-3 साल पहले की आप बात करें तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब जाके कुछ यूनिवर्सिटीज ने बैचलर्स करवाना स्टार्ट किया है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अब डिफरेंट, जब से सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स की बात शुरू हुई है, तो अब जाके हमारे पास थोड़ी अवेयरनेस बढ़ रही है। लेकिन अभी हमें अपनी टीम के अंदर जो कि सिक्योरिटी की टीम है हमारे पास, उस पे वेल स्किल्ड जो लोग हैं उनमें हमारे पास जो है वो कमी मिल रही होती है। सो ये भी हमारे पास एक चैलेंज है जो कि हम सॉक के अंदर देख रहे होते हैं। और एक चीज, इससे आगे बढ़ूंगा मैं, तो मैंने जैसे ऑटोमेशन की बात की, तो लैक ऑफ ऑटोमेशन इज अनदर ट्रेडिशनल सॉक चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग इन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स राइट नाउ। सो ये कुछ चैलेंजेस हैं, इनको हम देख रहे होते हैं। अच्छा, अब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो आप आज का हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, अजोर क्लाउड, एंड हाउ वी आर डीलिंग द थिंग्स इन अजोर क्लाउड। सिक्योरिटी ऑपरेशन टीम जो है वो कैसे क्लाउड में चीजों को देख रही होती है, ये आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, जब भी मैं क्लाउड की बात करता हूँ तो हमारे पास सबसे पहले, चूंकि हम स्पेसिफिक टू सॉक हैं, तो सॉक पे जो ब्लू टीम है उसके अंदर सीम सॉल्यूशंस और सोल सॉल्यूशन की बात की जाती है। तो
क्लाउड में हमारे पास जो सेम सॉल्यूशन है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल, और सोर्स सॉल्यूशन है दैट इज आल्सो माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल। तो माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल जो है वो इज अ क्लाउड नेटिव सीम एंड सोर्स सॉल्यूशन दैट हैज बिल्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज। जो हम फर्दर देख रहे होंगे कि कैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए हमारे पास जो थ्रेट वेक्टर्स हैं, जो अटैक्स हैं, जो अलर्ट्स हैं, उनको मिटिगेट कर रहा होता है या उनको मिनिमाइज कर रहा होता है। सो ये हम अब आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड उन पे देख रहे होंगे। ओके, सो जब भी हम क्लाउड की बात करते हैं, दिस इज बेसिकली आप सब लोगों ने देखा होगा शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है हमारे पास। ऑन प्रेमिसेस की बात करें तो उस पे हम सब कुछ हम मैनेज कर रहे होते हैं। हमारी एप्लीकेशंस हों, उस पे ओएस चल रहे हों, मिडलवेयर डाटा हो, उस पे जो भी एप्लीकेशंस और नेटवर्किंग होती है वो सब कुछ हम मैनेज कर रहे होते हैं। दिस इज ये जो आज का टॉपिक है उससे थोड़ा सा हट गया, लेकिन चूंकि क्लाउड की बात हो रही है तो उस पे ये बताना मैं लाजमी समझता हूँ कि शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है। अगर हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट या हाइब्रिड क्लाउड है तो उस पे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की सर्विस ली हुई है तो उस पे क्या चीजें हैं जो हम मैनेज कर रहे होते हैं, जो वेंडर मैनेज कर रहा होता है। इस सेम गोज फॉर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सारी चीजें आपके सामने हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो लास्ट है हमारा, उस पे देख रहे हैं सारी चीजें क्लाउड पे मैनेज हो रही होती हैं। उस पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हम मैनेज कर रहे होते हैं। इसके बरक्स अगर हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात करें तो हम एप्लीकेशंस और डाटा जो है वो हम मैनेज कर रहे होते हैं, बाकी चीजें जो है वो वेंडर की तरफ से मैनेज की जा रही होती हैं। सो इसको मैं यहाँ पर ही अभी महदूद रखूंगा क्योंकि दिस इज समहाउ नॉट रिलेटेड टू अवर टुडेज टॉपिक। ओके, सो लेट्स मूविंग टुवर्ड्स द माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल। माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल की बात करें तो आज हम 4 फेजेस को देख रहे होंगे कि हाउ वी कैन कलेक्ट द लॉग्स इन माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल। कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां से हम लॉग्स कलेक्ट कर रहे होंगे, कनेक्टर्स क्या चीजें होंगी, एनालिटिक्स रूल्स क्या चीजें होती हैं, और किस तरह से हम उन पे अलर्ट्स ट्रिगर करवा रहे होते हैं, अलर्ट्स को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास डिटेक्शन है, थर्ड फेज इन इन्वेस्टिगेशन है, और इन द फोर्थ फेज इज रिस्पॉन्ड। सो ये 4 फेजेस अकॉर्डिंग टू द निस्ट फ्रेमवर्क आप लोगों ने सुना होगा। इन 4 फेजेस को आज वन बाय वन हम देख रहे होंगे। क्योंकि ये फंडामेंटल ट्रेनिंग है, फंडामेंटल वेबिनार है, तो इसमें हम फंडामेंटल पार्ट ही देख रहे होंगे। वी आर नॉट गोइंग टू गो टुवर्ड्स द डेमो सेशंस। सो इन नेक्स्ट वेबिनार्स आई होप अगर आप सब लोग हमारे साथ रहे तो इंशाल्लाह वी विल बी पुटिंग अ डेमो सेशन टू ईच फेज ऑफ दिस स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन। सो माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल की बात करें, मैंने कहा कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज हैं हमारे पास। इसमें एआई के एल्गोरिथम्स हैं। ये हमारे पास चीजों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए हमारे पास लॉग्स को कोरिलेट करके अलर्ट्स को ट्रिगर करवा रहा होता है। हमारे पास बिल्ट इन कनेक्टर्स होते हैं। अच्छा, इस पे मजे की बात जो है माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के अंदर, अगर हम लॉग्स कलेक्शन की बात करें तो हमारे पास कनेक्टर्स होते हैं। सो ईच कनेक्टर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे पास विंडोज के लॉग्स कलेक्ट करके लाने हैं तो हमारे पास विंडो माइक्रोसॉफ्ट का एएमए एजेंट होगा, दैट इज अजोर मॉनिटरिंग एजेंट। सो अजोर मॉनिटरिंग एजेंट के अपने यूज केसेस होंगे स्पेसिफिक टू विंडोज मशीन। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं लिनक्स की मशीन्स को इंटीग्रेट करवाना है तो लिनक्स की अगर ओएमएस एजेंट है तो उसके अपने कनेक्टर के साथ बिल्ट इन यूज केस होंगे। इट मींस दैट इफ यू आर गोइंग टू डिप्लॉय अ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर इन क्लाउड, तो हमारे पास जो बिगेस्ट चैलेंज एक ये भी होता है कि हमारे पास जो मैच्योर यूज केसेस, जिस तरह से मैंने पहले बात की, तो यूज केसेस हमारे पास नहीं होता कि हम पहले कौन से यूज केसेस इंप्लीमेंट करने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर अभी हमारा फंडामेंटल स्टॉक है तो सेंटिनल ऐसा नहीं है। क्लाउड में अगर जब भी मैं बात करूंगा तो जो भी कनेक्टर आप डिप्लॉय करते हैं उसके साथ बिल्ट इन यूज केसेस आते हैं। आप वहां जस्ट आपने यूज केसेस पे जाना है, टेम्पलेट्स बने बनाए हैं, आपने उनको मैप करना है, आपने उनको ट्रिगर करवाना है। सो जो हमने स्टार्टिंग पे देखा सॉक का चैलेंज कि हमारे पास जो फॉल्स पॉजिटिव अलर्ट रेशियो है वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमारे पास यूज केसेस स्पेसिफिक टू ईच कनेक्टर इस पे हमारे पास सेंटिनल पे होते हैं। सो दैट्स व्हाई जब भी हम उन चीजों को डिप्लॉय करते हैं उनकी लॉजिक पहले से प्री बिल्ट लॉजिक होती है एज पर द कनेक्टर्स, एज पर एआई एल्गोरिथम्स। सो जो फॉल्स पॉजिटिव रेशियो होता है अलर्ट्स का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि हम देख रहे होते हैं सेंटिनल के अंदर। इसके अलावा कुछ और कैपेबिलिटीज हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट 365 जो कि हमारे पास ईमेल के लिए होता है, तो उसका हम जो डाटा है वो फ्रीली इंजेस्ट करवा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के अंदर। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट 365 की जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनके लिए हमारे पास कोई इंजेक्शन कॉस्ट नहीं होती। सो दिस इज अनदर फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हैं। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के फीचर्स को एक्सप्लोर करने का टॉपिक नहीं है, बट हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे जो कि हम देख रहे हैं, कोलेक्ट कैसे करेंगे लॉग्स, वो मेन टॉपिक है। सो हम
फीचर्स की अगर बात करें तो कुछ फीचर्स मैं आपके सामने और भी बता देता हूं कि इसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं। अच्छा, ये एक इंटरफेस आपको माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल का इनिशियल इंटरफेस नजर आ रहा होगा। सबसे जो मेजर जो हमने स्टार्टिंग में चैलेंज देखा कि हमारे पास डिप्लॉयमेंट के लिए अपफ्रंट कॉस्ट आती है, मेंटेनेंस के लिए हमारे पास कॉस्ट आती है। तो माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल की आपको कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं पड़ती, क्योंकि सारी जो चीजें मेंटेनेंस हो रही होंगी, मेंटेन हो रही होंगी, वो कि क्लाउड पे हो रही होंगी। आपके पास सर्वर्स की कोई कॉस्ट नहीं है, कंप्यूट की कोई कॉस्ट नहीं है, नेटवर्किंग की कोई कॉस्ट नहीं है, स्टोरेजेस की उस तरह से कॉस्ट नहीं है जो आप स्टार्टिंग पे एक ले लेते हैं, ठीक है। वो क्लाउड के कुछ चार्जेस हैं, बट ये सारी चीजें चूंकि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है टोटली मेंटेन हो रही होती हैं चीजें क्लाउड के अंदर। सो इसलिए हमारे पास ये एक जो मेंटेनेंस और अपफ्रंट कॉस्ट होती हैं डिप्लॉयमेंट के दौरान, किसी भी हम सॉल्यूशन की बात करें सीम की, तो वो उससे हम बच जाते हैं अगर हम सेंटिनल की बात कर रहे हैं। उसके अलावा यू जस्ट हैव टू गो टू अजोर पोर्टल, माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट, वहां से जाके आपने इसको आपने सब्सक्रिप्शन खरीदनी है। सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद आपने इसको मैनेजमेंट ग्रुप बना के आपने इसको डिप्लॉय कर देना है। सो इट इज एज सिंपल। इसके लिए आपको ये नहीं है कि पहले आपको सर्वर्स लाने हैं, सर्वर रूम्स, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें करनी है। सो जस्ट आपने पोर्टल के अंदर जाना है, वहां जाके आपने इसको क्या कर लेना है, डिप्लॉय कर लेना है। तो इसकी डिप्लॉयमेंट में एफिशिएंट बहुत ज्यादा है। अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करें तो इतना ज्यादा स्केलेबल है कि हर तरह का डाटा, वेदर इट बिलोंग्स टू योर कस्टम एप्लीकेशंस, वेदर इट बिलोंग्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, या फिर हम सिक्योरिटी कंट्रोल्स की बात करें, आप हर तरह का डाटा आप इसके अंदर इंजेस्ट करवा सकते हैं। इसके अंदर बिल्ट इन कनेक्टर्स हैं, एपीआईज हैं, रेस्ट एपीआईज हैं। सो हर तरह की ये आपको स्केलेबिलिटी देता है। सो स्केलेबिलिटी की हम बात करें तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। और गार्टनर की रिपोर्ट के मुताबिक अभी लेटेस्ट में अगर हम इसको देखें भी सेंटिनल को, तो ये टॉप पे चल रहा है, टॉप रैंकिंग पे चल रहा है। सो दिस इज वन ऑफ अनदर फीचर जो कि हम सेंटिनल के अंदर देख रहे होते हैं। अगेन आगे बात करें हम, एक चीज जो कि मैं यहाँ पे कहना लाजमी समझूंगा, वो ये है कि हमारे पास सेंटिनल के अंदर ये जो फीचर है कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, इस पे एक ऑप्शन आता है पे फॉर व्हाट यू यूज। पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन होती है इसकी। फॉर एग्जांपल एक मंथ के अंदर आपने जितने लॉग्स इंजेस्ट करवाए और डिफरेंट जो कॉस्ट हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वर्चुअल मशीन चल रही हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जितना आप जो चीज यूज कर रहे हो आपको उसी की कॉस्ट पे करनी है। फॉर एग्जांपल एक मंथ में आपने 100 जीबी का डाटा इंजेस्ट करवाया, तो आपने 100 जीबी की कॉस्ट ही वो करनी है, बियर करनी है। अगर 200 जीबी का डाटा इंजेस्ट करवाया तो 200 जीबी की कॉस्ट ही आपको देनी है डॉलर्स में। जबकि अगर हम दूसरे सिम की बात करें तो वहां पे इस तरह से हो रहा होता है कि फॉर एग्जांपल आप इसका एक प्लान खरीदते हो कि ईपीएस की मैं बात करूं, हमारा सालाना ईपीएस इतना होगा या क्वार्टरली ईपीएस इतना होगा। तो उस पे क्या होगा कि आप वन टाइम चीजें बाय कर रहे होते हो, वो अगर आप यूज करो या ना यूज करो, आपको वो कॉस्ट हर सूरत में क्या करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है। सो इसमें आप वही कॉस्ट पे करते हो जो चीजें आप यूज कर रहे होते हो। सो दिस इज वन अनदर फीचर ऑफ क्लाउड। ओके, आई गेस मैं बहुत चीजों को क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 मिनट का वक्त है, तो हमारे पास 28 अराउंड स्लाइड्स हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को बहुत तेज़ी से लेके चल रहा होता हूँ। आखिर में हमारा एक क्यूए सेशन भी होगा इंशाल्लाह, हम उसमें भी चीज़ों को देख रहे होंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। एंड कोई भी अगर आपका पॉइंट है, यू गाइस कैन नोट डाउन, आप एंड पे क्वेरी कर सकते हैं। ओके, सो these are basically the four phases जिसको हम वन बाय वन देख रहे होंगे: कलेक्शन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्पॉन्ड। अगर हमारे पास जो भी निस्ट का फ्रेमवर्क है वो भी ये कह रहा होता है कि आप किस चीजों को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, तो ये 4 फेजेस जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कलेक्शन की बात करूंगा मैं, फिर डिटेक्शन में हमारे पास एनालिटिक्स को कैसे यूज करेंगे, हंटिंग क्यूरीज क्या होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस में हम इंसिडेंट्स की बात कर रहे होते हैं, और रिस्पॉन्ड के वक्त जो 4 और लास्ट फेज होगा हमारा, उस पर हम ऑटोमेशन यानी कि प्ले बुक्स की बात कर रहे होंगे। विजिबिलिटी यानी कि पहला जो फेज है, हम इसमें कलेक्शन की बात करें तो जैसे मैंने कहा, आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रही होगी। आप हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम से, सर्विसेज से, एप्लीकेशन, यूजर, और जो भी आपके सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, फोर्टिनेट, सिस्को, सिमेंटिक, हर तरह का आप लॉग इसके अंदर इंजेस्ट करवा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के अंदर। और इंजेस्ट कैसे करवाएंगे, इनके पास बिल्ट इन कनेक्टर्स हैं, हर चीज के कनेक्टर्स हैं। अगर कनेक्टर्स जिस चीज का अवेलेबल नहीं है उसकी एपीआई है, एपीआई की से हम उसको कलेक्ट करवा सकते हैं। सो ये हमारे पास एक चीज है कि हम हर तरह के लॉग्स इसके अंदर क्या करवा सकते हैं, इंजेस्ट करवा सकते हैं। ओके, सो
ये कुछ चीजें हैं जो हम आगे भी देख रहे होंगे। कलेक्शन का फेज जैसे आपको है, मैंने पहले से भी आपको बता दिया कि हर तरह के लॉग्स हम इसके अंदर, स्केलेबिलिटी इसकी वन ऑफ द बेस्ट सीम सॉल्यूशन है जिसकी स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो कलेक्ट कर रहे होंगे। एनालाइज के वक्त इसके अंदर एनालिटिकल रूल्स होंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैप हुए हुए हैं, ठीक है। हंटिंग क्यूरीज होंगी, आप उन हंटिंग क्यूरीज को पब्लिश करवा सकते हो। प्री मतलब आपको कोई चीज स्क्रैच से बिल्ड नहीं करनी, सारी चीजें वहां पे मौजूद हैं, आपने जस्ट डिप्लॉय करनी है। इन्वेस्टिगेट कर कैसे करेंगे, उसके अंदर जूनिपर की नोटबुक्स होंगी, नोटबुक्स कैसे हमें हेल्प कर रही होंगी चीजों को एनालाइज करते हुए। और फिर हम अजोर लॉजिक एप्स यानी प्ले बुक्स को यूज करते हुए हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये भी हम आगे देख रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें इस वाले फेज को, अजोर लॉजिक ऐप वाले फेज को मैं लास्ट पे इन डिटेल डिस्कशन करूंगा कि लेट्स सपोज हमारे पास सेंटिनल क्लाउड नेटिव सोर्स सॉल्यूशन तो है ही, लेकिन अगर हमें इंसिडेंट किसी अलग टिकरिंग प्लेटफॉर्म पे भेजने हैं, लाइक किसी अलग सोर सिक्योरिटी ऑटोमेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन सॉल्यूशन पे भेजने हैं, लाइक सर्विस नाउ है, IBM रेजिलिएंट है, और भी बहुत सारे हमारे पास सोर्स सॉल्यूशन है, तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर हम क्लाउड के अंदर क्लाउड नेटिव सोर नहीं यूटिलाइज करना चाह रहे तो हम इसकी एपीआई के थ्रू हम डिफरेंट सोर्स सॉल्यूशन के साथ इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। सो इस कैपेबिलिटी को हम आगे इसको इन डेप्थ डिस्कस करने होंगे। सेकेंड थिंग इज डिटेक्शन। अगेन मैंने कहा कि डिटेक्शन इसकी हर कनेक्टर के स्पेसिफिक 126 कनेक्टर से ज्यादा इसके कनेक्टर्स हैं जो कि बिल्ट इन हैं, और आए दिन इसके नए कनेक्टर्स डिप्लॉय हो रहे हैं। अगर आपने एडी का, माइक्रोसॉफ्ट एजोर एडी है, उसका कनेक्टर डिप्लॉय करना है तो उसके बिल्ट इन यूज केसेस आपको मिल जाएंगे। आपने सिस्को का, वेव का, नेटवर्किंग सॉल्यूशंस के आपने कनेक्टर्स डिप्लॉय करने हैं तो प्री बिल्ट आपको यूज केसेस अलर्ट्स मिलती हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे मैप हुई होती हैं और वो ट्रिगर हो रही होती हैं, आपने जस्ट डिप्लॉय करनी होती हैं। सो ये बेसिकली सेंटिनल एनालिटिक्स का एक टैब आपके सामने है जिसपे हम एनालिटिक्स पे जाके कोई भी यूज केस स्क्रैच से बिल्ड भी कर सकते हैं। और चूंकि हमारे पास, जैसे मैंने बात की, हर कनेक्टर से रिलेटेड यूज केसेस होते हैं ऑलरेडी, तो हम डायरेक्ट उनको भी डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ यूज केसेस यहाँ पे ट्रिगर हुए हैं कि हाई सस्पिशियस पावर शेल एक्टिविटी डिटेक्टेड, या फिर ब्रूट फोर्स का है। तो ये सारे एनालिटिक्स टैब के अंदर जाके हम इसको चीजों को देख रहे होंगे। अब डिटेक्शन के वक्त हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक तो हम हंटिंग एनालिटिक्स रूल्स बिल्ड कर सकते हैं, जो दूसरी चीज है दैट आर हंटिंग क्यूरीज। ओके, सो हंटिंग क्यूरीज और एनालिटिक रूल आर टू डिफरेंट थिंग्स। हंटिंग क्यूरीज को हम मोस्ट प्रोबेबली, हमारे पास कम्युनिटी है, गिटहब की एक पूरी कम्युनिटी है, इसके अंदर कोई भी लोग सर्व कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरह की क्यूरीज बना रहे होते हैं, कोई भी नया अटैकिंग वेक्टर आता है, थ्रेट वेक्टर आता है, आईओसी आती है, तो उसके अंदर एक हंटिंग क्यूरी बिल्ड कर देते हैं। उसको जस्ट हमने यहाँ पे क्या करवाना होता है, डिप्लॉय। अच्छा, ये चीज अलर्ट, इसको हम अलर्ट पे भी करवा सकते हैं। अगर कोई चीज हमें लगता है कि ये क्यूरी जो है बहुत ज्यादा मेच्योर है, इसको हम डायरेक्ट पब्लिश करवा सकते हैं कि अलर्ट पे ट्रिगर हो या इंसिडेंट पे ट्रिगर हो। और हंटिंग क्यूरी को, वो हंटिंग क्यूरी प्री बिल्ड पब्लिश है, जैसे ही फॉर एग्जांपल वो आईओसी मैच होती है या फिर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हमारे पास हंटिंग क्यूरी भी ट्रिगर हो जाती है। सो एनालिटिक रूल एंड हंटिंग क्यूरीज आर द टू इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द डिटेक्शन फेज। नेक्स्ट फेज इज इंसिडेंट फेज। ऑब्वियसली जब क्यूरी ट्रिगर होगी या एनालिटिक रूल ट्रिगर होगा तो हमारे पास इंसिडेंट का हमारे पास एक फेज आएगा, इन्वेस्टिगेशन फेज आएगा। हम उसको कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ये एक सामने आपके सामने एक एविडेंस मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। आप इन्वेस्टिगेट टैब पे जाएंगे, एक बहुत खूबसूरत सा ग्राफ आपके सामने आ जाएगा, पूरा वो बताएगा कि कौन सी एंटिटी है, उस पर कौन सी फाइल एग्जीक्यूट हुई है और कौन सा डेस्कटॉप है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे, मतलब एक ग्राफ की फॉर्म पे, तो एनालिस्ट का यहाँ पे जो टाइम है वो बच जाता है अलर्ट को इन्वेस्टिगेट करते हुए, क्योंकि एक पूरा ग्राफ आपके सामने है कि पहले ये चीज एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ये चीज एग्जीक्यूट हो रही है, फिर उससे आगे ये चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं, सारी चीजें आपके सामने अलर्ट्स पे आ जाती हैं। तो हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है, जो रिपोर्ट राइटिंग का टाइम है, वो कम हो जाता है व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग अलर्ट्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल। ये देखें आपके सामने ये ग्राफ नजर आ रहा होगा कि एक ये डेस्कटॉप है, इस पे ये यूजर है, इसने ये जो फाइल है इस पे ये एग्जीक्यूट हुई है और उसने कोई चीजें डाउनलोड की हैं और कुछ सस्पिशियस प्रोसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हुए हैं। तो कोई भी अलर्ट है हम उसको ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसके ग्राफ में जाके उसको देख सकते हैं कि ओवरऑल हो क्या रहा है। सो ये इसकी कुछ कैपेबिलिटीज हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल फेल्ड यूजर लॉग ऑन अटेम्प्ट्स ऑन एन ऐप, किसी एप्लीकेशन पे मल्टीपल फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स हैं तो ये उसका पूरा एक ग्राफ हमारे सामने आ रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है, ये यूज केस किसके बारे में है। तो हमारे पास जो रिपोर्ट राइटिंग का टाइम है, जो MTTR है, MTD है, मीन टाइम टू डिटेक्शन, वो बहुत बहुत ज्यादा मिनिमम
हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के अंदर और इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट के फेज के अंदर। सो अलर्ट कलेक्ट कर दिया हमने लॉग, सेकंड फेज में हमने देखा कि कैसे डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करने के बाद कैसे उसको रिपोर्ट करेंगे, इंसिडेंट मैंने आपको दिखा दिया। अब द लास्ट फेज वी आर गोइंग टू कवर इज ओके, सो हम अलर्ट्स को डैशबोर्ड्स के अंदर भी दिखा सकते हैं। बहुत सारे पावर बीआई के अंदर इसके बिल्ट इन डैशबोर्ड्स होते हैं। बहुत मतलब आपको एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स अगर बिल्ड करनी है तो बहुत जबरदस्त इसके अंदर से डैशबोर्ड्स आप इंपोर्ट करवा सकते हो, एक्सपोर्ट करवा सकते हो केक्यूएल के थ्रू। ओके, सो हमने सारी चीजें देखी। पहले हमने देखा कि लॉग्स कलेक्ट कैसे करने हैं, फिर डिटेक्शन में हमारे पास क्या क्या चीजें थी। उसके बाद हमने देखा कि हम इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। अब द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज के अब हमने चीजों को रिस्पॉन्ड करना है। हमारे पास इंसिडेंट अगर ट्रिगर हो गया या अलर्ट ट्रिगर हो गया तो हमने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो वी हैव अज़ूर लॉजिक एप्स। सो प्लेबुक हमारे पास अज़ूर लॉजिक एप्स के अंदर बिल्ट इन प्लेबुक्स भी हैं, ऑटोमेशन रूल्स भी हैं। इस पे ऑटोमेशन रूल्स भी हैं और प्लेबुक्स भी हैं। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक प्लेबुक के अंदर मल्टीपल ऑटोमेशन रूल्स हो सकते हैं। सो आई गेस वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। इसको मैं थोड़ा सा और क्विकली रैप अप करूंगा सो दैट वी कैन टेक द क्यूरीज फ्रॉम योर एंड एज वेल। प्लेबुक अज़ूर लॉजिक ऐप के अंदर प्लेबुक कैसे क्रिएट होती है, हम नेक्स्ट सेशन अगर हमारे हुए तो हम इसको वन बाय वन कुछ प्लेबुक्स इंप्लीमेंट करेंगे और किसी भी अलर्ट को किस तरह से प्लेबुक के थ्रू हम रिस्पॉन्ड करवा रहे हैं इसको हम डिटेल देख रहे होंगे। प्लेबुक इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ स्टेप होती है जो कि हम देख रहे होते हैं कि कोई अलर्ट ट्रिगर होता है। फॉर एग्जांपल ब्रूट फोर्स का एक अलर्ट ट्रिगर हुआ है तो उसको हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हमने पहले उसकी इंटिटी गेट करनी है कि कौन सा यूजर नेम है, कौन सा सिस्टम है। उस यूजर नेम के पासवर्ड को हम रीसेट करवा सकते हैं थ्रू द ऑटोमेशन रूल्स और द अज़ूर लॉजिक ऐप। जैसे उसका पासवर्ड रीसेट हो गया उसके बाद हम प्लेबुक से ये भी करवा सकते हैं कि अगर कोई मलवेयर डिटेक्ट हुआ है तो हम रिमोटली स्कैन एग्जीक्यूट कर दें। जैसे ही कोई मैलिशियस फाइल एग्जीक्यूट हुई है हम रिमोटली उसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, उस सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये ऑटोमेशन से हो रही होती हैं। और माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के अंदर बिल्ट इन प्लेबुक्स अवेलेबल है हमारे पास हर कनेक्टर से रिलेटेड। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट प्लेबुक जो सेंटिनल है ये आपको 3 तरह की प्लेबुक्स आपको दे रहा होता है। आप ऑर्केस्ट्रेशन, आप इनरिचमेंट कर सकते हैं। हम अपने सॉक के अंदर इनरिचमेंट की प्लेबुक्स मोस्ट ऑफ द टाइम कर रहे होते हैं कि आईपी है उसकी इनरिचमेंट डिफरेंट सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म में जाके उसको देखे वायरस टोटल और वहां से उसकी रेपुटेशन लेके उसकी इनरिचमेंट कर दिया आईपी यूआरएल या हैश की। उसके बाद ऑर्केस्ट्रेशन की प्लेबुक है, मतलब आप किसी भी इंसिडेंट को आप किसी दूसरे सोर प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हैं। इसकी प्लेबुक्स हमारे पास बिल्ट इन होती हैं। एंड द थर्ड वन इज आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं यानी कि आप उसको थ्रू माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर अगर आपके पास चल रहा है या कोई भी ईडीआर प्लेटफॉर्म चल रहा है तो आप चीजों को ब्लॉक करवा सकते हैं किसी फायरवॉल प्लेटफॉर्म, किसी ईडीआर प्लेटफॉर्म के ऊपर या जो भी आपका सिक्योरिटी कंट्रोल चल रहा है। तो ये 3 तरह की प्लेबुक्स जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के अंदर बिल्ट इन हो रही होती हैं और इसको हम अपने हिसाब से क्या कर रहे होते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं। 200 प्लस बिल्ट इन कनेक्टर्स आ गए हैं। मैंने पहले 126 कहा था और हर कनेक्टर के रिलेटेड आपको प्लेबुक्स मिल जाएंगी। आप इसको अपने हिसाब से अपने तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक सी प्लेबुक है कि जैसे ही कोई अलर्ट ट्रिगर हो आप उसको ईमेल करवा दो। तो आप देखें इसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं, आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपने कोई कोड नहीं लिखना, आपने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखनी। यू जस्ट हैव टू ड्रैग द फंक्शन दैट आर प्री बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल, जिनके पीछे आर्टिफिशियल एल्गोरिथम्स प्री बिल्ट हैं, काम कर रहे हैं। आपने उन फंक्शंस को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और उसके बाद वो सीरीज ऑफ स्टेप आपने फॉलो करते हुए क्या करना है, उस चीज को रिस्पॉन्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हैं कि कोई एक सेंटिनल अलर्ट ट्रिगर हुआ है, उसको वो क्या कर रहा है कि जीमेल पे किसी भी रिप्लाई कर सकता है, ईमेल कर सकता है अपनी पूरी टीम को या आउटलुक पे भेज सकता है। इवन के हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स Hello, Junaid, are you with us? Uh, Sorry, guys, I guess. सॉरी Junaid, सॉरी फॉर are you द still with us? इंटरप्शन। Yes, no worries, no worries. You can continue. Okay, so we were looking forward for the playbooks. उसके बाद ये एक बेसिक सी प्लेबुक थी।
ये ओवरऑल एक आज की समरी है कि हम किस तरह से एनालिटिक्स रूल्स में अलर्ट्स ट्रिगर करते हैं, अलर्ट्स को फिर मैप करते हैं इंसिडेंट्स पे, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमने एक पूरा फ्लो डायग्राम देखा और उसके बाद हम इसको क्या कर रहे होते हैं, प्लेबुक्स एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। सो आई गेस दिस इज द लास्ट थिंग, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, सो मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कवर करने की कोशिश की। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा हम स्लो चले। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। I hope you guys will have a lot of questions, lot of queries. So now we have a limited time, and Ali, we may proceed towards the QA session. Well, thank you, Junaid. Thank you for your valuable time और आपने अपना कीमती वक्त दिया. It was really impressive presentation. Uh, Thank you so much. This was really informative and engaging session to me. So let's Thank move you. to Q&A. We have multiple questions in the chat box. So first question is from Ali Heather. What is difference between the SOC and NOC? Okay. Okay, so that is one of the most basic question. SOC stands for Security Operations Center and NOC stands for Network Operations Center. SOC की हम बात करें तो हम एक completely जो भी हमारे पास threat vectors हैं उनको कैसे, जो भी alerts हैं, हम complete phase देख रहे होते हैं कि alert trigger होते हुए उसको respond होते हुए जो भी complete बीच में step हैं किस तरह से respond करना है, वो पूरा हम Security Operations Center में देख रहे होंगे और इसमें multiple security controls आ जाते हैं। पूरा आपका एक infrastructure आ जाता है, आपके पास email gateway होता है, आपका एंड पॉइंट सिक्योरिटी होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी होती है, तो इसके अंदर मल्टीपल फेजेस आ जाते हैं। बट स्पेसिफिक अगर हम नॉक की बात करेंगे तो नॉक में हमारे पास जो नेटवर्क सिक्योरिटी पे नेटवर्क परफॉर्मेंस की चीजें हैं, फॉर एग्जांपल फायरवॉल्स है, फायरवॉल्स की इंटीग्रेशन ऐसे हुई हैं या नहीं, उस पे जो एसएलएस इंप्लीमेंट अपना उसकी बात कर रहा हूँ, आईपीएस आईडीएस चीजें, इस तरह की चीजें इनेबल हैं या नहीं, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, किस उसकी मेंटेनेंस किस तरह से चल रही होगी, थ्रेशोल्ड अगर हमारा बढ़ जाए तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो हम एक नेटवर्क पेरीमीटर पे उसको कंप्लीटली देख रहे होते हैं नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में, दैट इज नॉक। And then we have a question from Deep. What is the limit of logs in each connector, like 100 or 1000 or etc.? Okay, that is one of the most interesting question and one of the most mature question. uh, uh, ओके ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही कोई कनेक्टर हम इंटीग्रेट करते हैं उस पे कोई आपको कोई लिमिट, स्केलेबिलिटी मैंने बात की, कोई लिमिट है ही नहीं। क्लाउड का यही तो फायदा है कि क्लाउड में आपने बस कनेक्टर डाउनलोड करवाया, उसके बाद आप जितने लॉग्स इंजेस्ट करवाना चाह रहे हैं आप इंजेस्ट करवा सकते हैं। बट यू विल हैव टू पे द इंजेक्शन कॉस्ट, क्योंकि आपको कनेक्टर डिप्लॉयमेंट की कॉस्ट उस तरह से नहीं आती जितनी इंजेक्शन की कॉस्ट पड़ती है। सो फॉर एग्जांपल आपने 100 जीबी का डाटा इंजेस्ट करवाया तो उसकी इतनी कॉस्ट होगी, टेराबाइट्स का इंजेस्ट करवाया तो उसकी इतनी कॉस्ट होगी। सो आपको इंजेक्शन कॉस्ट पड़ती है, तो आप अनलिमिटेड डाटा आप इंजेस्ट करवा सकते हैं, बट यू विल हैव टू पे द इंजेक्शन कॉस्ट। Then we have another question from Muhammad Salah. Can we integrate open source threat intelligence platform with Sentinel or Sentinel work within its own ecosystem? कोई open source हम threat intelligence platforms and Sentinel के साथ integrate करवा सकते हैं और इसके environment में? दिस इज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली सेंटिनल की यही है कि बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। उसमें आप कस्टम एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करवा सकते हो, आप कस्टम डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करवा सकते हो। इवन के यू हैव अ कॉमन लॉग फाइल, उसको भी आप कस्टम लॉग फाइल जो कि आपके डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, जिस पे रिकॉर्डलेस के एसक्यूएल के लॉग्स हैं, किसी भी चीज़ के लॉग्स हैं, आप उसको भी माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के अंदर इंजेस्ट करवा सकते हो। सो आप हर तरह की चीज़ को इंटीग्रेट करवा सकते हो क्लाउड के अंदर। और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं थ्रेट इंटेलिजेंस की बात करूँ तो मिस्प है, you can integrate MISP with Microsoft Sentinel as well, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ओपन सोर्स की जिसको आप इंटीग्रेट करवा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। Then we have again fundamental question, very common and basic question. What are some best practices to building a SOC? ओके सो इसका रिस्पॉन्ड अगर मैं बहुत शॉर्टली करूंगा क्योंकि बहुत अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है ये। शॉर्टली करूंगा तो सॉक के जो पैरामीटर्स हैं, देयर आर थ्री इंटीग्रल पार्ट ऑफ सॉक दैट आर पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको सबसे पहले पीपल की बात करें तो यू विल हैव अ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर टीम, जिसपे आपके पास L1 एनालिस्ट होने चाहिए, L2 एनालिस्ट होने चाहिए, टीम लीड्स होने चाहिए। हर एस्पेक्ट पे चीजों को कंट्रोल करने वाले आपके पास पीपल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसेस की बात करूं तो आपका इंसिडेंट
रिस्पॉन्स प्रोसेस बिल्ड होना चाहिए, थ्रेट इंटेलिजेंस प्रोसेस, MTTR, MPDD प्रोसेस और लॉग्स कलेक्शन, अलर्ट्स मैच्योरिटी, अलर्ट्स इंटीग्रेशन, लॉग सोर्सेज इंटीग्रेशन। तो ये सारी चीजें प्रोसेसेस में आ जाते हैं कि इन सब के प्रोसेसेस बिल्ड होने चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी पे वी शुड हैव अ प्रॉपर सिक्योरिटी कंट्रोल्स। अगर ईमेल से थ्रेट आ रहा है तो आपके पास ईमेल सिक्योरिटी गेटवे होना चाहिए। नेटवर्क की बात करें तो आपके पास प्रॉपर फायरवॉल्स होने चाहिए जिस पे IDS और IPS इनेबल होना चाहिए। एंड पॉइंट्स की बात करें तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी आपके पास EDR, XDR, एंटीवायरसेस होने चाहिए। एप्लीकेशंस की बात करें तो आपके पास एप्लीकेशन सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो people, process, technology are the three integral parts to build a SOC. So I guess we should wrap up this session. Thank you so much, Junaid, for your very valuable time. And we hope our audience will find this webinar very useful and informative. And yeah, thank you. Thank you so much. इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी रिलीज करेंगे जिसमें हम इसको थोड़ा लेंदी रखेंगे इसका ड्यूरेशन। आज तो बड़ा शॉर्ट था, हमें स्पीड अप करना पड़ा चीजों को। So thank Thank you, you so Junaid. much. So nice of you. It was really nice to have you on board. Thank you. Pleasure to be here. Thank you so much for the Thank you. Have a session. great day. Bye bye. Allah Hafiz.